میں آپ کے سامنے جو کلام رکھوں گا وہ موقع کی مناسبت سے ہے. آپ دیکھیں آپ کو چاروں طرف روح القدس کا نشان, آگ کے شعلے اور کبوتر کا نشان, یہ روح القدس کا نشان ہر طرف سے نظر آ رہا ہے. ہیری اور ارم انہوں نے بڑی محنت کی رات کو اور یہ سارا انہوں نے بنایا اور پھر آپ یہ لگایا بھی. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. ایک ماحول بن گیا, آپ نے عید پینتیکوست کا ماحول دے دیا ہے. تو آئیے آج کا کلام ہم سنتے ہیں. عمارت کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک. آج میں چاہتا ہوں آپ کو عید پینتیکوست کی سمجھ آ جائے کہ ہم کیوں مناتے ہیں. لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پاٹ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کلام مقدس کی تلاوت کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے کہ یہ آمین. بولے ہاللیلویا, بولے پریز دی لارڈ. تالیاں بجا کے کہے ویلکم ہولی اسپرٹ. بولی تو سے ویلکم ہولی اسپرٹ. آواز میں ویلکم ہولی اسپرٹ. یعنی کہ جب وہ عید پینتیکوست کے دن سب ایک جگہ جمع تھے, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو میں آج یوں چلوں گا. یہ جو سامنے آیات ہیں پہلی آیت سے چوتھی آیت تک سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا اور ہم سیکھتے چلے جائیں گے. تو پہلے نمبر پہ ہم سیکھیں گے عید پینتیکوست. اردو میں عید پینتیکوست لکھا ہوا ہے, انگلش میں پینٹیکوسٹ ہے, پینٹیکوسٹ. تو اردو میں پینتیکوست لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کا ایک اور نام ہے بائبل میں, احبار کی کتاب میں اور خروج کی کتاب میں, ہفتوں کی عید. یہ یہودی مہینہ سوان جو ہے اس کی 6 تاریخ کو یہ عید ہوتی ہے. یہودی کیلنڈر کا جو مہینہ ہے سوان, اس کی 6 تاریخ کو یہ عید ہوتی ہے. اور جو ہمارا کیلنڈر ہے اس میں مئی یا جون میں یہ عید ہوتی ہے. یہ عید جو ہے اس میں خوشی, شادمانی اور شکر گزاری کی جاتی ہے. آپ سن رہے ہیں, عید پینتیکوست دراصل شکر گزاری اور قربانی اور شادمانی کی عید ہے. یہ شکر گزاری کی عید ہے اور خدا کے حضور آ کے شکر گزاری کرنے کی عید ہے. عید پینتیکوست یہ کب ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سوان مہینے کی 6 تاریخ کو, لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ قوم بنی اسرائیل مصر میں غلام تھی. کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے, وہاں سے خدا نے انہیں آزاد کیا. اور کیسے آزاد کیا پتا؟ ایک برا ذبح کیا گیا, اس کا لہو دروازے کے اوپر اور دونوں سائڈ پہ لگایا گیا, اور خدا نے کہا کہ تم ہر سال یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو یہ عید منانا, کہ کبھی غلام تھے پھر آزاد ہوئے. یہ میں کس عید کی بات کر رہا ہوں؟ ابھی عید پینتیکوست کی بات نہیں کر رہا. یہ مصر سے نکلنے کی یاد میں ایک عید ہوتی ہے یہودی کیلنڈر کے ہر مہینے کی 14 تاریخ کو, پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو. میں کہتا ہوں اچھی طرح سے سنیں آپ تاکہ سمجھ آئے. پھر اس عید کا نام ہے عید فصح. اس عید کا نام کیا بولیے؟ میں کس عید کی بات کر رہا ہوں؟ کس عید کی؟ جب وہ ملک مصر سے نکلے, مصر کی غلامی سے نکلے, اس عید کو کہتے ہیں عید فصح. کیا کہتے ہیں؟ خدا نے کہا اس عید کے بعد
50 दिन गिन लेना। जब तुम मुल्क केनान में पहुंच जाओ तो हर साल ईद फसा मनाना, कि कभी तुम मिस्र में गुलाम थे, आजादी की ईद मनाना, और उसके बाद 50 दिन गिन लेना। 50वें दिन शुक्रगुजारी की कुर्बानी होगी। अपनी फसलें लेकर, अपनी फसलों के पहले फल लेकर खुदा की हुजूर में जाना, यरूशलेम में हैकल में जाना और खुदा का शुक्र करना और कहना कि ईद फसा में तो तूने हमें मिस्र से आजाद किया, लेकिन ईद पेंतिकोस्त में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी साइश करते हैं, तेरी हम्द करते हैं कि तूने हमें फसलें भी दी, हमें खेत भी दिए, हमें खाने पीने को भी दिया। बोले हालेलुया। तो वो खुदा जो मिस्र की गुलामी से निकालता है, वो सिर्फ मिस्र की गुलामी से निकालता ही नहीं है, बल्कि वो हमारी जरूरियात को भी पूरा करता है। बोले हालेलुया। तो क्या समझ आई? ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाई जाती थी? कि वो फसलें लेकर, अपनी फसलों के पहले फल, ये जैसे कि इंडिया में, इंडियन पंजाब जो है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बैसाखी मनाई जाती है, फसलों का त्यौहार होता है, मौसम बहार का त्यौहार होता है। ये मौसम बहार का त्यौहार है और फसलें काट के उसका जो पहला फल है वो लेके हैकल में जाते थे। हजारों यहूदी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में थे, उनको हुक्म था कि वो जाएं यरूशलेम में अपनी फसलों को लेके और जाके वो वहां खुशी मनाए। बोले हालेलुया। आइए हम सब बाइबल में से पढ़ लेते हैं। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 15वीं आयत। तफसील मैं आपको पहले सुना चुका हूं। मैं चाहता हूं आपको ईद पेंतिकोस्त की समझ आ जाए, यहूदियों की हम क्यों मनाते हैं, आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। तो पढ़िए। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, सब्बत होता था ईद फसा को, ईद फसा सब्बत के दिन होती थी। मैंने आपको बताई ईद फसा क्या है, मिस्र से निकलने की ईद। तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना। ईद फसा का अगला दिन, दूसरा दिन मंडे, वहां से गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए। एक सब्बत, एक हफ्ता कितने दिन का? 49 दिन। एक सब्बत के अगले दिन शुरू करना, तो 7 सब्बत बोल रहा है, 49 और 1 50। हेलो, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं? सब्बत के अगले दिन से गिनना शुरू करना और 50 तक गिन लेना। ठीक। ईद फसा के बाद 50वां दिन जो होगा, 7 हफ्तों के बाद, 7 सब्तों के बाद, तो यहां लिखा है और तुम उस सब्त के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्त पूरी ना हो जाए, और 7वें सब्त के दूसरे दिन तक 50 गिन लेना, 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी लाना। तो ईद फसा के बाद 50वां दिन नई कुर्बानी, नई फसलों की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, न्यू ग्रेन ऑफरिंग, अपनी फसलों की नई फसलें, अपने फसलों के नए फल लेकर खुदा के हुजूर जाना, ये है ईद पेंतिकोस्त। तो ईद पेंतिकोस्त कब होती है? कितने दिन बाद? ईद फसा के कितने दिन बाद? ईद फसा के कितने दिन बाद? और 50, इसका मतलब ईद पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। जब आप नया दिन पहुंचेंगे तो आप हैरान होंगे कि हम क्यों मनाते हैं। तो जरा स्लाइड दिखाइए। सामने देखिए। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। तो लेफ्ट साइड में देखिए, ईद फसा के बाद कितने दिन, और उसमें करते क्या थे? नई फसल की शुक्रगुजारी। याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेंगे। ईद फसा मिस्र से निकलने की यादगार, यानी कि खून लगाया गया बरे का, उसके 50 दिन बाद शुक्रगुजारी, अपनी फसलें लेकर खुदावंद के हुजूर जाना। और फिर एक और स्लाइड देखिए, जब देखिए आपको समझ आएगी। जी, अब मैं रिलेट करूंगा इसको
مجھے بتائیں خداوند یسوع مسیح جس دن جی اٹھا اس عید کو ہم عام طور سے کیا کہتے ہیں؟ ایسٹر. جب یسوع مسیح جی اٹھا اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یا عید قیامت المسیح، ریزرکشن سنڈے. ذرا سب بولیے. جب یسوع مسیح جی اٹھا اس عید کو کیا کہتے ہیں؟ ریزرکشن سنڈے، عید قیامت المسیح یا ایسٹر. تو ایسٹر کے بعد 7 اتوار گن لینا. آج کتنے دن ہو گئے؟ 50واں دن. ہلو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آج کون سا دن ہے؟ گن لیجیے. 7 اتوار، 7 49 اور اس کے اگلے دن سے ہم شروع کرتے ہیں. تو آج 50واں دن ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد. مصر سے نکلے، صرف مصر سے نکلے عید فصح مناتے تھے. ہم یسوع مسیح کے کفارے کے باعث، یسوع کے مر کے جی اٹھنے کے باعث گناہ سے بچ گئے، گناہ کا خاتمہ ہوا اور ہم ہر سال ایسٹر پہ عید مناتے ہیں. یسوع ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ مصر سے تو نہیں، روحانی طور سے گناہ سے آزاد ہو گئے یسوع کے مر کر جی اٹھنے سے. ایسٹر کے موقع پہ ہم یہ مناتے ہیں. اب ایسٹر کے بعد 50واں دن، تالیاں بجا سکتے ہیں. عید کے بعد 50واں دن آج ہے، 7 سنڈے. تو 50واں دن، 50واں دن عید پینٹیکوسٹ کیسا ریلیٹ ہوا ہے؟ ادھر سے ان کی عید، ادھر سے یسوع کو جی اٹھے ہوئے 50واں دن، وہ اپنی عید منا رہے تھے. ادھر 50واں دن تھا اور اس 50ویں دن میں مسیح کے صعود کے بعد، آسمان پہ جانے کے 10 دن بعد، قیامت المسیح کے بعد 50 دن بعد، ٹوٹل 50 دن کے بعد روح القدس زمین پہ آ گیا. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. یسوع چرنی میں پیدا ہوا، دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے. اب خدا آ گیا زمین پہ. کون سے دن؟ عید پینتیکوست کے دن، 50ویں دن. اس کا مطلب ہے پہلے گناہوں سے خلاصی دی. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید وہ ہماری فصح ہے، وہ ہماری فصح ہے. جیسس از آور پیس اوور لینڈ. یسوع ہمارا فصح کا بڑھا ہے، ہماری عید فصح ایسٹر ہے. اور اس کے بعد 50واں دن عید پینتیکوست، نئی فصلیں، نئی فصلوں کی عید. یہودی جب منا رہے تھے، شاگرد ایک جگہ جمع تھے، وہ بھی نئی فصلیں لے کر خدا ان کے حضور میں جمع تھے. یسوع مسیح کے وعدے کا انتظار کر رہے تھے، ہولی اسپرٹ کو مانگ رہے تھے، ساتھ ہی اپنی فصلیں خدا ان کے حضور لے کے آئے تھے. اور انہیں کیا پتا کہ آج 50واں دن ہے عید یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد. وہ تو منا رہے تھے اس بات کی عید کہ ہم بنی اسرائیل جو ہے مصر سے آزاد ہوئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا، یاد نہیں تھا کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی آج 50واں دن ہے. بولے ہاللیلویا کہ ایک دم پاک روح قدرت کے ساتھ نازل ہوا. بولے ہاللیلویا. آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو. آپ کو پتا چل گیا ہم کیوں مناتے ہیں. آگے چلیے. عید فصح جو ہے میں نے پہلے بتایا، سبت کے دوسرے دن سے شروع کر کے پہلے وہ ایک پہلی فصل کا پورا ایک گٹھا خدا کے گھر میں لاتے تھے. پھر 7 سبت گرنے کے بعد 50واں دن، 50ویں دن نظر کی نئی قربانی، ابھی احوال میں آپ نے پڑھا ہے، نیو گرین آفرنگ لے کے آتے تھے. اور اب میں نے آپ کو ڈیٹیل بتانے کے بعد بتا رہا ہوں پینتیکوست پہ روح القدس کیوں نازل ہوا. خدا کا ایک اپنا ٹائم ہے. یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد کتنے دن زمین پہ رہے؟ کتنے دن رہے؟ 40 دن کے بعد آسمان پہ چلے گئے. 40 دن کے بعد جب آسمان پہ گئے ہیں تو آسمان پر جانے سے پہلے کہا میں روح القدس بھیجوں گا. اگلے دن نہیں بھیجا، دوسرے دن بھی نہیں بھیجا. 10ویں دن جب 40 جمع 10 کتنا ہو گیا؟ جب 50واں دن آیا اور 50ویں دن یروشلم میں ہزاروں یہودی 12 ملکوں سے جمع تھے. ایسا موقع خداوند ڈھونڈ رہا تھا، ایسے موقع پہ نازل کروں گا جب وہ خوشی منا رہے ہوں گے اور وہ فصلوں کی قربانیاں دے رہے ہوں گے. ہزاروں یہودی 12 ملکوں سے یروشلم
بولے ہاللیلویا. تو میں تفصیل تھوڑی آگے جا کے پھر بتاؤں گا. قیامت المسیح کے بعد 50واں دن عید سعود کے بعد 10واں دن عید پنتیکوست بنا رہے تھے. اب اسی آیت کو دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ ذرا اونچی بات میں پڑھیے. امام دوسرا بات اس کی پہلی آیت پڑھیے اونچی بات میں. جب عید پنتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب میں نے اس کی بات کرنی ہے. آپ سب سن رہے ہیں؟ جو نہیں سن رہے اپنا ہاتھ کھڑا ہے. جو سن رہے ہیں اپنے ہاتھ لے رہے ہیں. وہ سب ایک جگہ جمع تھے عید پنتیکوست کے دن. یہ کون ہے وہ سب؟ میں بتاتا ہوں. یہ 120 لوگ تھے. 12 شاگرد. آپ کہیں گے وہ تو 11 تھے, ایک تو مر گیا, لیکن اعمال کی کتاب میں انہوں نے ایک 12واں شاگرد چن لیا تھا, متیاس. تو 12 شاگرد تھے. مقدسہ مریم تھی, چند اور عورتیں تھیں, اور یسوع کے بھائی جو یوسف اور مریم کی اولاد. آپ کہیں گے وہ تو ایماندار نہیں تھے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو یوحنا کے سپرد کیا, اور آگے لکھا ہے کہ کیونکہ یسوع کے بھائی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. لیکن 120 کی جماعت میں 12 شاگرد بھی ہیں, مقدسہ مریم بھی ہے, چند عورتیں اور بھی ہیں, اور یسوع کے بھائی بھی ہیں. یسوع کے بھائی کون؟ مقدسہ مریم اور یوسف کے بیٹے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر آپ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھیں تو یسوع جی اٹھنے کے بعد اپنے بھائیوں سے ملا, اور انہوں نے یسوع مسیح کو زندہ ہونے کے بعد دیکھا. سارے شک جاتے رہے, سارے گمان جاتے رہے, اور وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے یسوع کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے. بولے ہاللیلویا. تو یسوع کے بھائی, یسوع کے شاگرد, مقدسہ مریم, 120 کی جماعت. ذرا سلائڈ دکھائیے. یہ اعمال کی کتاب کے 13ویں پہلے باب کی 13ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے. یہ سب کے نام لکھے ہیں. میں نے 12 نام نہیں لکھے, نہ میں نے 120 کے لوگوں کے نام لکھے ہیں. میں نے لکھا تو کون کون سی. نمبر 1 12 شاگرد. کتنے لوگ تھے؟ نمبر 1 نمبر 2 مقدسہ مریم. نمبر 3 4 دیگر عورتیں. نمبر 4 یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگرد, اس کے بھائی جو مسیح پر ایمان لائے تھے. ٹوٹل کتنے؟ 120 کی جماعت. یہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے, عید پینٹیکوست منا رہے تھے, اپنی فصلیں لے کے آئے تھے, شکر گزاری کر رہے تھے, اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے اے خداوند یسوع مسیح, تو ایک دفعہ چرنی میں آیا, پھر تم نے جان دی, پھر تو ہوا, دفن ہوا, اور جی اٹھا, آسمان میں چلا گیا. تم نے جانے وقت کہا تھا پاک روح کو بھیجوں گا, کیونکہ تم نے کہا تھا تمہیں یتیم نہیں میں چھوڑوں گا. اب ہمیں یتیم نہ چھوڑ, روح القدس بھیج دے, پاک روح بھیج دے, روح القدس بھیج دے. ایک دن ہو گیا دعا کرتے, دوسرا دن, تیسرا دن, 10واں دن جب آیا, جب 40 جمع 10 50واں دن آیا, عید پینتیکوست کا دن آیا, تو پاک روح بڑی قدرت سے نازل ہوا. ایک بار روح القدس کے لیے تالیاں بجائیے. اب یہ لوگ 120 کی جماعت اس بڑے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے تھوڑا سا بتایا ہے, لیکن بائبل میں سے پڑھ لیں. ایمان کی کتاب پہلا باب اس کی 4 5 آیت. 120 لوگ کیا کر رہے تھے؟ اصل میں یہ یسوع کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. یسوع نے کہا تھا یروشلم سے باہر نہیں جانا جب تک روح القدس نہ آئے, جب تک ہولی اسپرٹ نہ آئے. یروشلم میں ٹھہرے رہو. یہ یروشلم میں ٹھہرے ہوئے انتظار کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. پڑھیے ذرا. یسوع نے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کیا کہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تھوڑے دن کے بعد یسوع مسیح نے آسمان پہ جانے کے آخری دن 40ویں دن کیا کہا؟ تھوڑے دن کے بعد. یہ نہیں بتایا کتنے دن, 10ویں دن آیا نا. آسمان میں جانے کے دن یسوع نے کیا کہا؟ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بولے ہاللیلویا. وہ تھوڑے دن 10 دن پورے ہو گئے اور پاک روح نازل ہوا. بولے ہاللیلویا. لیکن بات یہ ہے حکم کی تعمیل. شاگرد سوچ سکتے تھے
यीशु मसीह तो अब आसमान पे चला गया है। उसने कहा था रूह कुदस नाज़िल करूंगा, यरूशलेम से बाहर ना जाना, मेरे वादे का इंतजार करना। सुस्त पड़ सकते थे, लेकिन वो सब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे। जब पहला दिन आया उन्होंने सारा दिन दुआ की और खुदा से कहा, ऐ पाक खुदा, ऐ यीशु मसीह, अपना वादा पूरा कर, रूह कुदस नाज़िल कर। लेकिन शायद सारा दिन दुआ करके वो थक गए हो, शायद रोजा भी रखा हो, थक गए हो, फिर हिम्मत हार गए हो, फिर अंदर से ही शायद पतरस ने कहा हो, यार हिम्मत करो, यीशु ने कहा था वो वादा पूरा करेगा, वो सादिकुल कौल है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा, इंतजार करो, हिम्मत क्यों हार गए हो। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ होगा, तीसरे दिन और 10वें दिन शायद बहुत थक गए हो, फिर एक दूसरे की हौसला अफजाई की हो कि यार से एक दिन और सही, फिर और एक दिन, आज का दिन तो कर लो। और 10वां दिन है कि जब वो दुआ कर रहे थे तो वादा पूरा हो गया, आखिरी बड़ी कुदरत से पेंटिकोस्ट के दिन नाज़िल हुआ। तो रूह उसके, अब मैं आपको बताऊंगा नाज़िल होने के, पाक रूह के बपतिस्मे के चंद वाकयात। नेक्स्ट स्लाइड चलिए जरा, और देखिए दूसरा बाब, दूसरी आयत, या लिखा है कि जब वो जमा थे, दुआ कर रहे थे, यार अभी तो सुनने का वक्त आया है, वापस आ जाए जल्दी से। तो लिखा है कि यकायक, जरा जोर से बोलिए यकायक, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। कभी आपने तूफान आते देखे हो, कभी जोरदार आंधी जिससे दरख्त भी गिर जाए, घर भी गिर जाए, वो उसकी शोर की आवाज कभी सुनी हो? ऐसा शोर जो पहाड़ों को भी नरमा दे, ऐसी जोरदार आवाज जब यीशु मसीह आएगा तब भी आसमान से ललकारेगा, और जोरदार आवाज से ललकारेगा तो यीशु मसीह जमीन पे आएगा, वे आने से पहले उसके लोग आसमान पे उठा दिए जाएंगे। अब इस जोरदार आवाज यकायक, बोले यकायक, इसका मतलब सडनली कहना चाहता हूं, वो जो 10 दिन हो गए, मुझे क्या पता था कि यकायक अभी अचानक कुछ होने वाला है। सरप्राइज, यकायक सरप्राइज है। अभी तो शायद वो सोचते हो पता नहीं 1 महीना और दुआ करेंगे, 10वें दिन यकायक का मतलब है अचानक, सरप्राइज। अचानक का मतलब है, आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका मौजज़ा आज भी हो सकता है, आपका मौजज़ा अचानक आज भी हो सकता है। बोले हालेलुया। आपकी बीमारी अचानक अभी भी जा सकती है, आपकी जरूरत अचानक यकायक अभी पूरी हो सकती है। शायद खुदावंद का अभी वक्त है, हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे, आज मौजज़ा हो सकता है, वो यकायक, वो सरप्राइज अभी आपको मिल सकता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बास लोग समझते हैं, वो अपने वक्त में काम करता है। यकायक अचानक ही कुछ हो जाना है, वो बातें ना जो ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना इंसान के इरादे में आई, अचानक हो सकती है। बोले हालेलुया। और इसी को मौजज़ा कहते हैं। खुदा देर नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि खुदा के घर में देर है, देर नहीं, वो झूठ बोलते हैं। खुदा के घर में देर है ही नहीं, वो तो अपने काम वक्त पे करता है। सूरज वक्त पे निकलता है कि नहीं? बोलिए, कभी देर हुई? दिन रात का सारा निजाम और निजाम शम्सी के सारे निजाम सब कुछ वक्त पे होता है। खुदा वक्त पे काम करता है। उसने ऐन वक्त पे यकायक मौजज़ा कर दिया। आज मौजज़ा लेके जाइएगा। आज आपका मौजज़ा हो सकता है, वो सडनली, वो सरप्राइज का वक्त आज हो। इंतजार कीजिए, हिम्मत ना हारे। तो अब अगला हिस्सा आप देखिए, दूसरी आयत का अगला हिस्सा। मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा क्योंकि काफी बातें आप पहले से समझते हैं। दूसरा बात, दूसरी आयत क्या, पढ़िए जरा सामने देख के, लेफ्ट साइड की स्लाइड, क्या लिखा है? यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। जोर की आंधी, ये जोर की आंधी खुदा के ज़हूर का निशान है। जरा मेरी तरफ देखिए और सुने। जोर की आंधी, ऐसे जोर की आंधी, बादल गरजने की आवाज, समुद्र के पानी की आवाज, जोरदार आंधी।
ये खुदा की हुजूरी का निशान है। पुराने अहदनामे में खुदा की हुजूरी जब आती थी तो आंधी आती थी और पता चलता था खुदा, ये रूह कुद्स भी खुदा है। इसलिए अब भी आंधी आई पहले, लेकिन पहले खरूज की किताब में देखें कि जब खुदा की हुजूरी आई तो कैसे आंधी आई। खरूज 19 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह सवेरे होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और किन्ना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और खुदा उस आंधी में से होकर गुजरा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये मूसा का वाकया, बनी इस्राएल का वाकया है कि खुदा जब आता था आंधी के जोर शोर में आता था तो रूह कुद्स क्या है? खुदा। बोलिए क्या है? आप कहते बाप और बेटा और रूह कुद्स, तो रूह कुद्स खुदा है। जब रूह कुद्स आता है आंधी उसकी निशानी है। तो खुदा जब आता है आंधी आती है, जब पाक रूह आए तो आंधी आई। बोले हालेलुया। तो ये बात क्या साबित करती है कि रूह कुद्स, होली स्पिरिट इज गॉड। बोलिए द होली स्पिरिट इज गॉड। ये बात यीशु ने निकोदेमुस से बात करते वक्त एक बात समझा दी थी आंधी की। पढ़िए जरा यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत। यानी क्या? हवा जिधर चाहती है चलती है। जरा गौर से सुने, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। आगे क्या लिखा है? जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। इसका मतलब जो रूह कुद्स से पैदा होता है ऐसा ही है। आंधी में उठा के ले जाती है। अचानक वह वो गुमान में भी नहीं था, फिरौन के अंदर रूह कुद्स ने ये बात डाली कि आज तुम्हें जाना है और आंधी उठा कर उन्हें ले गई कसूर के इलाके में और वहां जाके उन्होंने बाइबलें तकसीम की, शर्ट्स तकसीम किए और फिर उन्होंने डोनेशन लोगों को दी, दुआ उनके साथ की, कलाम सुनाया। ये पाक रूह है। या लिखा है ऐसा ही वो शख्स है। कौन? जो रूह से पैदा हुआ है। जब रूह आता है तो आंधी आती है और जब आंधी आती है तो उठा के कहीं से कहीं ले जाती है। बोले हालेलुया। कैसे फिरौन को और इसी तरह से फिलिप्पुस को कैसे उठा के ले गई, पतरस को कैसे उठा के पूरी दुनिया में ले गई, कैसे पौलुस और सीलास और बरनबास और उनके साथियों को कैसे पाक रूह ले जाता रहा। आंधी ले जाती रही और आंधी पूरी दुनिया में फैल गई। बोले हालेलुया। आंधी फैल गई, अब पूरी दुनिया में आंधी फैल चुकी है। बोले हालेलुया। अब इस दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा 19 आयत देखिए, हम जल्दी अपने टाइम पे खत्म कर पाएंगे। पहली बात आंधी। ये आंधी ऐसी फैल रही है कि पूरी दुनिया में फैल रही है। आज जिधर देखो रूह कुद्स, लोग गाने बोल रहे हैं, पाक रूह में दुआ कर रहे हैं। बोले हालेलुया। आंधी फैल चुकी है। बोले हालेलुया। और दूसरे नंबर पे आग के शोले। आप सामने ये दीवारों पे देखिए, आग के शोले आपको नजर आएंगे। तो क्या लिखा है? और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई और उन सब पर आग है। कैसे शोले थे वो? आग के शोले। कैसे? अब सुनिए गौर से। जब खुदा पुराने अहद में आता था तो कैसे आता था? आंधी में। लेकिन जब खुदा पुराने अहद में आता था तो शोले नहीं होते थे, आग नहीं होती थी। बोले हालेलुया। और आज रूह कुद्स आया, ये भी आग में आया है क्योंकि रूह कुद्स भी खुदा है और आग खुदा की हुजूरी को जाहिर करती है। और आग जो है भस्म करके रख देती है, पाक करती है, पाकीज़ा करती है, गुनाह को राख कर देती है। और आग जो है खुदा के आने का निशान है। आपको याद है जब मूसा ने झाड़ी को देखा तो क्या हो रहा था? हेलो, जल रही थी शोले और उस शोले में से खुदा की आवाज। तालियां नहीं बजाएंगे? तो खुदा की हुजूरी का निशान आपके शोले हैं। और रूह कुद्स जब आया तब भी आपके शोले। देखिए खरूज की किताब उसका 19वां बाब उसकी 18वीं आयत और लिखा, कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावंद शोले में होकर
उस पर उतरा। जब खुदा कोई सीना बनाया तो आग के शोले नजर आए, और खुदा आग के शोलों में नजर आया, उतरा। बोले हालेलुया। पुराने नियम में खुदा आग के शोलों में नजर आता था, और नए नियम में ईद के इसके दौरान जब रूह नाज़िल होता क्या हुआ? आग के शोले। बोले हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक कर आते हैं। आपने कभी गाया होगा ये गीत? तो रूह के शोले लपक लपक कर आते हैं आग के शोलों की मानद। और ये आप समझ गए। और अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। एक और बात हम तेजी से पूरी 4 आयतों को समझेंगे। दूसरा बात उसकी 4थी आयत में लिखा है, और दूसरी स्लाइड दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें आग के शोले किसी ज़बाने हर की ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से 8 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और लिखा है, और आप सब बोलिए, और वो सब रूह कुद्स से भर गए। बोलिए जरा, वो सब कितने लोग थे? उसमें कौन कौन था? 12 शागिर्द, मुकद्दसा मरियम और यीशु के भाई जो मरियम और यूसुफ के बच्चे थे, और चंद औरतें। 120 की जमात थी जो यीशु के जी उठने के बाद यीशु के पैरोकार हो गए थे। तो वो सब के सब रूह से भर गए। वो जो इंतजार कर रहे थे, जो कह रहे थे, ए यीशु तूने तो वादा किया था कि मैं अब भेजूंगा रूह कुद्स को, तूने वादा किया था मैं तो आसमान पे चला जाऊंगा, बाप के दाहिने हाथ बैठूंगा, तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, रूह कुद्स आएगा। तो फिर क्या हुआ? वो सब रूह कुद्स से भर गए। बोले हालेलुया। आदि की सूरत में, शोलों की सूरत में खुदा की हुजूरी, पाक रूह की हुजूरी आई, और वो सब रूह से भर गए। अब भर गए का मतलब सुनिए, कभी पानी का भरा हुआ गिलास देखा? अगर भरे हुए गिलास में और पानी डालें तो क्या होगा? पानी बाहर छलकना शुरू हो जाता है, लबरेज होना। अब होता यह है, जब हम पाक रूह से भरते हैं तो भरते ही चले जाते हैं और लबरेज होकर चले जाते हैं, और हमारा गला लबरेज होकर छलकता है। बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। तो भर गए। पहले पाक रूह किधर था? पुराने आत्मा में कहा था जी, कहा था? सब बोले पुराने आत्मा में पाक रूह कहा था। और बिगाए बगाए किसी खास मकसद के लिए जमीन पर आता था। लेकिन अब क्या हुआ? वो आ गया। और यीशु ने एक बात कही थी, देखिए जरा क्या कही थी। यूना की जीन 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत। ये मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, आप वहां भी देखिएगा। यूना की जीन 14वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आखिरी सब बोलिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे। इसका मतलब है जब तक रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं मिलता, बपतिस्मे का मतलब डोबा, डुबकी, जब हम रूह में डूब नहीं जाते तब तक पाक रूह साथ तो होता है, अंदर नहीं होता। ये मैं पहले बयान कर चुका हूं। ये भर गए, ये गैरसलाम के साथ पाक रूह का बपतिस्मा है। जब पाक रूह का बपतिस्मा है, हम भर जाते हैं, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट हो जाती है, और फिर हम पाक रूह से भर जाते हैं। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। पाक रूह से भर जाते हैं। पहले पाक रूह हमारे साथ है। जिनको पाक रूह का बपतिस्मा गैरसलामों के साथ नहीं मिला, पाक रूह उनके साथ है, अंदर नहीं है। हमने भरना है। अब तो पाक रूह जमीन पे आ चुका है। अब तो हम आसमान में नहीं, आसमान से नहीं बुलाएंगे, ऐ रूहे पाक उतर आ। क्या कहेंगे? ऐ रूहे पाक धन्यवाद। कहिए, ऐ रूहे पाक धन्यवाद। शुक्रिया कह सकते हैं, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, शुक्रिया। अब तो नीचे आ चुका है। बोले हालेलुया। बस हमने इसे लेना है, कबूल करना है। जब तक हम पाक रूह को
अंदर आने की दावत नहीं देंगे वो नहीं आएगा। खुदा जबरदस्ती नहीं करता। यीशु के बारे में क्या लिखा है? देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, तोड़ के नहीं आता, जबरदस्ती नहीं करता, खटखटाता रहता है और एक दिन आप खोल देते हैं। पाखरू भी आपके कानों में सरगोशी होती रहती है, मैं अंदर आना चाहता हूं, खोल दे दरवाजा। और जब हम खोल देते हैं तब अंदर आता है और हम आप इससे भाग जाते हैं। बोले हालेलुया। अगली स्लाइड देखिए जी। और वो सब रूह से भर गए और पढ़िए, मैं चाहता हूं यहां पढ़े, देखिए सामने। और वो सब रूह से भर गए और ये बोलिए जी, और इसका मतलब पाक रूह के बपतिस्मे का निशान गैर समान, और कोई निशान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी गैर समान नाम ही होते पाक रूह मिल सकता है। भाई वो कहते हैं, कहने दे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है गैर समान में होती है, ये पहला निशान है। और ये मैं इसमें बड़ी तालीम दे चुका हूं। तो उसके बाद ये तो पहला तजर्बा था। दूसरा तजर्बा, पतरस कर्नेलियस के घर में गया, इमाम 11वां बाब मंदिर में आए, कर्नेलियस के घर में गया। और जब कर्नेलियस के घर में गया तो ये स्लाइड है वहां पे, तो वहां लिखा है कि जब पतरस कलाम सुना रहा था, अभी मैं कलाम सुना रहा हूं, रूह कुदस आ सकता है, अब भर सकते हैं। जब पतरस कलाम सुना रहा था तो रूह कुदस उन पर उस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ। पतरस कहता है जैसे शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था गैर ज़बानों के साथ, ऐसे ही नाज़िल हुआ। ये निशान है। और फिर दूसरी मिसाल, इमाम की किताब 19वां बाब और उसकी 6वीं आयत। दूसरी मिसाल, पौलुस इफिसस में गया, वहां 12 ईमानदार थे। अच्छा ये मजे की बात है, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनो। 12 लोग थे, ईमानदार का मतलब तौबा कर चुके थे, निजात पा चुके थे, और गलती से बोते का बपतिस्मा गलत तरीके से ले चुके थे। जरा ध्यान से सुनिए, बड़ी खास बात है। 12 ईमानदार थे वहां पे, निजात पा ली। किसी ने कहा यार बपतिस्मा भी लो, उन्होंने बाप और बेटे ने उसकी बजाय लिया बोते का, कह दिया मैं तुझे यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा देता हूं। लिया बोते का पहला कदम ठीक था, दूसरा उल्टा हो गया। अब फिर सुनिए क्या हुआ। उधर से पौलुस पहुंच गया। जब पौलुस पहुंचा है, उसने पूछा उनसे, अब ध्यान से सुनिए, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं। फिर पौलुस ने रूह कुदस की तालीम दी कि रूह कुदस नाज़िल हो चुका है, वो आ चुका है, बस कबूल करना है। तो लिखा है उसके बाद पतरस ने उनके सरों पे हाथ रखे, 12 लोग गैर ज़बानें बोलने लगे, रूह कुदस उन पे नाज़िल हुआ। बोले हालेलुया। ये उसमें आपकी 6वीं आयत है। जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। अच्छा अब पतरस ने एक सवाल किया कि यार तूने निजात तो पाई थी, रूह कुदस भी पाया, तो बपतिस्मा कौन सा लिया था? ऐसे ही अचानक बपतिस्मा कौन सा लिया था? कह रहे हमने तो यूहन्ना का लिया था। उन्होंने कहा नो, यूहन्ना का नहीं। फिर उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दिया गया। कल मैं किसी शख्स को बता रहा था, कोई आदमी कह रहा था कि जब तौबा करनी, निजात वाली, पाक रूह मिल गया, गैर ज़बानें बोलने लगे, तो फिर बपतिस्मे, पानी के बपतिस्मे की होती थी क्या जरूरत? इतना अहम है कि पौलुस ने गैर ज़बानों के बपतिस्मे के बाद भी कहा वो दूसरा स्टेप रह गया था, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आखिर में वो टाइम तो हो गया, लेकिन मुझे खत्म करने में एक दो बातें। खुदा के बंदा पौलुस की ख्वाहिश क्या है? पहला ग्रंथियों 14वां बाब उसकी 26वीं आयत। बस ऐ भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जुमा होता है, सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होता है। जब जमात में आप आते हैं, आप आपके अंदर गीत झूम रहे होते हैं, प्रस्ती, मुकाशफा, खुदा का कलाम, आयात और गैर ज़बानें और गैर ज़बानों का तर्जुमा और नबूवत होना चाहिए, ऐसी ख्वाहिश रखें।
आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम तस्लीस को मानने वाले हैं। सर अब जरा ज्यादा तवज्जो दीजिए, मैं एंड कर रहा हूँ। हम किसको मानने वाले हैं? तस्लीस में क्या है? नंबर 1 बाप, नंबर 2, नंबर 3, और ये तीनों एक हैं, तीनों एक है, खुदा है, तीनों के अपने अपने काम है। बाप जिसने बेटे को भेजा, निजात का मंसूबा बनाया, बेटा जिसने आके जान दी, चर्बी में पैदा हुआ, जान दी, रूह कुद्दूस जो निजात के लिए तैयार करता है, यसू को कबूल करने के लिए तैयार करता है और ईमानदारों को तैयार करता है ताकि आसमान पे पहुंच जाए। दुल्हन तैयार कर रहे ताकि बेटे के पास आसमान पर दुल्हन को पहुंचा दे। बोले हालेलुया। रूह कुद्दूस के लिए पुरजोर तालियां बजाते हैं।